and Shashi Tharoor are seen as little upset with the party. सब चंगा है? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करें, जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करें, बच्चे हमारी अहद के चालाक हो गए। Regarding the constitutional amendment 130, what is your apprehension in that? It makes an investigating officer the boss of the Prime Minister of India. So therefore, there are very serious fundamental problems with this constitutional amendment. जो उनको समर्थन दे रहे हैं, जो सरकार की बसाखियां हैं, क्या वो मदद करेंगी? क्योंकि ये कानून विपक्ष के लिए नहीं लाया गया, ये उनको डराने के लिए लाया गया है। कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वोट चोर और ये सब, क्या डू यू एग्री विद दैट सर? चुनाव आयोग के ऊपर इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आज भरोसा नहीं है। ये SIR से नहीं शुरू हुआ, ये शुरू हुआ था EVM से। ट्रंप ने टैरिफ को नोटिफाई कर दिया है। How do you see India's position right now? It's a painful situation. Some parts of the Indian economy will get hurt, but under no circumstances as a country we should bow down to coercion. आपकी पार्टी ने इस बार, क्या ये सच है कि आपको अलाउ नहीं किया ऑपरेशन सिंदूर पे बोलने के लिए? कांग्रेस संसदीय दल में 100 लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलना चाहते थे, उनमें से मैं भी एक था। शायद उनको लगा होगा कि मैं पार्टी का पक्ष उतने अच्छे तरीके से संसद में नहीं रख सकता। ऐसा क्यों आपको क्रिप्टिक मैसेज करने पड़ते हैं कुछ अपनी बात को कन्वे करने के लिए? भारत का रहने वाला हूँ और ऑटोनॉमी। खोजी पत्रकारिता इसी को कहते हैं कि अपना चक्षु खोलिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। Manish ji, first of all, thank you very much for giving us time at such a short notice. I want to start straight away with this session, which was just concluded. We saw some animated scenes regarding the constitutional amendment 130. What is your apprehension in that? You intervened in the debate and you said that it's a distortion of law. You are a lawyer yourself. तो इसके क्या मायने क्या हैं सर? Well, the 130th Constitutional Amendment Bill Naveen and the consequential amendments in the Union Territories Act and the Jammu and Kashmir Reorganization Act is completely destructive of the basic structure of the Constitution. The basic structure doctrine holds that rule of law and democracy are indestructible features of the Indian Constitution. Implicit in the rule of law, going back to the time of the ancient Greeks and the Romans, is the presumption that you're innocent until proven guilty. This amendment squarely stands that presumption, which is the foundation of jurisprudence in countries across the world, completely on its head. Even the most authoritarian and tyrannical legal systems believe, or at least give, hypothetically or figuratively speaking, the person accused the benefit of this presumption. What this particular amendment does is that it demolishes the due process clause, Article 21. It demolishes the fundamentals of parliamentary democracy, that the cabinet is collectively responsible to the legislature, and it makes an investigating officer the boss of the Prime Minister of India. So therefore, there are very serious fundamental problems with this constitutional amendment. बट सर उनका तर्क ये है कि कह रहे हैं कि क्या सरकार जेल से चलेगी अगर कोई बाई चांस किसी को अक्यूज होता है, किसी पे कोई केस दर्ज होता है और जेल में जाता है, तो वो कहते हैं क्या सरकार को, क्या DIG जैसा मशीनरी सरकार, क्या ये मॉरली सही है? देखिए, जब आप नैतिकता की बात करते हो तो नैतिकता कानून से नहीं सिखाई जाती। आपने कानून से सिखाने की कोशिश की थी जब आप 10वां अध्याय, द 10th शेड्यूल को आपने संविधान में जोड़ा था, आयाराम गयाराम रोकने के लिए, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। क्या डिफेक्शन रुकी? जो रिटेल एक्टिविटी हुआ करती थी 1985 तक, एंटी डिफेक्शन कानून आने के बाद
वो पहले होलसेल हो गई, फिर सुपरमार्केट हो गई, फिर मेगा मॉल हो गई। और विडंबना तो ये है कि कई ऐसे केसेस हैं जिसमें एक विधायक एक पार्टी से दूसरी पार्टी चला गया और फिर अपनी पार्टी में वापस आ गया उसी 5 साल में, और उसकी जो याचिका है, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन की याचिका है, वो 5 साल तक स्पीकर के पास, अध्यक्ष के पास लंबित पड़ी रहती है। दूसरा उदाहरण, आपने 2003 में संविधान में संशोधन किया कि राज्यसभा के लिए ओपन वोटिंग होगी, कि जो डेजिग्नेटेड ऑब्जर्वर है उसको हर विधायक अपना वोट दिखा के डालेगा। क्या इस बदलाव से कथाकथित ऐसे लोग जो राज्यसभा में नहीं होने चाहिए, क्या आप उनका राज्यसभा में आना रोक पाए? तो बुनियादी बात यह है नवीन जी कि आप कानून और संविधान को बदल के नैतिकता नहीं ला सकते। नैतिकता एक विचार है, एक कन्विक्शन है, वो व्यक्ति के भीतर होती है। और अगर उसको लगता है कि उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हो गया है, और इस देश में जितने फर्जी मुकदमे दर्ज होते हैं, जिस तरह से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को वेपनाइज किया गया है, आप कल को किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उसको 30 दिन के लिए बंद कर देंगे। अगर पीएमएलए का कानून है तो 2-2 साल ज़मानत नहीं होती। और इसलिए आप एक धारणा बनाएंगे कि भाई ये व्यक्ति गुनहगार है, और हर चलचित्र के ऊपर हेडलाइंस चलेगी, अखबारों में बड़ा बड़ा छपेगा, और जब वो व्यक्ति छूटता है या उसके ऊपर आप आरोप स्थापित ही नहीं कर पाते हैं, क्लोजर रिपोर्ट फाइल होती है, तो वो किसी अखबार के 24वें पेज के 17वें कॉलम पे छपेगा या किसी चलचित्र के टिकर के ऊपर चलेगा। तो ये सरासर पूरी तरह से एक बहुत ही गलत कानून है, बहुत ही डेंजरस परंपराएं ये सेट कर रहा है, और सरकार को इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। तो जेपीसी में आप लोग शामिल होंगे? अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय माने तो मेरा यह मानना है कि संसद की हर प्रणाली में शामिल होना चाहिए, पर इस कानून में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप संयुक्त संसदीय समिति में जिसके ऊपर बहस कर सकें। दिस इज सो ब्लैक एंड वाइट एंड इट इज सो एब्सर्ड इन इट्स कंसेप्शन, ही डजंट रिक्वायर ए जेपीसी। एक पैरा का कानून है जो अगर मेरे को जेपीसी में कहना हो, जो बात मैं आपको कह रहा हूं, यही बात 5 मिनट में मैं जेपीसी में कहूंगा। तो ये इस कानून का ना सिर है ना पैर है, और इसको वापस लेना चाहिए। सरकार तो ला रही है सर। तो लाएगी तो देखते हैं, चैलेंज करेंगे। भाई पहले तो संवैधानिक संशोधन को 2/3 बहुमत चाहिए दोनों सदनों में। क्या सरकार के जो कोएलिशन पार्टनर्स हैं, जो उनके साथ जो उनको समर्थन दे रहे हैं, जो सरकार की बसाखियाँ हैं, क्या वो मदद करेंगी? सबसे पहला सवाल तो वो पैदा होता है, क्योंकि ये कानून विपक्ष के लिए नहीं लाया गया, ये उनको डराने के लिए लाया गया है। तो सर अब मैं आता हूँ दूसरे मुद्दे पर, एसआईआर। इसको लेके बहुत चर्चा हुई, और कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वोट चोर और ये सब। क्या डू यू एग्री विद दैट सर? देखिए, बुनियादी बात ये है कि चुनाव आयोग के ऊपर जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, उसके बहुत ही सब्सटैंटिव जो शेयर होल्डर्स हैं, उनका भरोसा उठ चुका है। चुनाव, और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि चुनाव आयोग के ऊपर इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आज भरोसा नहीं है। ये एसआईआर से नहीं शुरू हुआ, ये शुरू हुआ था ईवीएम से। और जिस तरह की कथाकथित धांधलियाँ हुई हैं, ईवीएम तो आपके टाइम पे आई थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद जैसे हरियाणा का चुनाव हुआ, आपके पूरे दिन मशीन इस्तेमाल करेंगे, 3 दिन वो स्ट्रांग रूम में बंद रहेगी, जब निकाली जाएगी तो 99% बैटरी होगी,
नवीन जी, आप अपना आईपैड रात को चार्ज करके 100% पे बंद करके छोड़ दीजिए, सुबह आपको 80% मिलेगा, बंद आईपैड। तो ये तो बिल्कुल ही अटपटी बात है और बिल्कुल ही एक ट्रेवर्सिटी है कि आज तक वो चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाई कि एक ईवीएम जो सुबह पहले 6 बजे ऑन की गई, मॉक टेस्टिंग हुई, उसके ऊपर ईवीएम बंद की गई, फिर 8 से 6 बजे तक चली, उसके बाद बंद की गई, उसके बाद 3 दिन के लिए स्ट्रांग रूम में रखी गई, उसमें 99% बैटरी कहाँ से हो सकती है? आप भी फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, यू आर लॉजिकली राइट। सो चुनाव आयोग इसका जवाब क्यों नहीं देता? नहीं, लेकिन और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो आप स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू की बात करते हैं, संविधान में, कानून में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में कहीं पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का प्रावधान ही नहीं है। प्रावधान क्या है कि 2 चुनाव के बीच, चाहे लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के हों, जो मतदाता सूची है उसको पुनर्चिन्हित किया जाएगा, इट विल बी रिवाइज्ड। और जिस तरह से आनन फानन में बिहार के चुनाव के 2 महीने पहले आप इसको रिव्यू कर रहे हैं, 61 लाख लोगों को उससे निकाल देते हैं, मतलब 10% मतदाताओं को बाहर कर देते हैं, तो ये सब कुछ संदिग्ध हो जाता है और शक के घेरे में आता है। और इसलिए मेरा ये मानना है कि ये जो प्रक्रिया है जिसके तहत चुनाव आयोग के जो आला अधिकारी हैं उनको चिन्हित किया जाता है, उनको नॉमिनेट किया जाता है, उनको पंजीकृत किया जाता है, उसको बदलना चाहिए। उसमें आपके एक कोई सुप्रीम कोर्ट का, इनफैक्ट कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उसमें शामिल होना चाहिए, प्रधानमंत्री को होना चाहिए, गृह मंत्री को होना चाहिए, दोनों नेता विपक्ष को होना चाहिए। और अगर ऐसी समिति ये 3 इलेक्शन कमिश्नर्स का चयन करती है तो ये जो खोई हुई विश्वसनीयता है ये लौट पाएगी। सर, थोड़ा जियो स्ट्रैटेजिक या जियो पॉलिटिकल सवालों में उसमें आपका काफ़ी इंटरेस्ट रहता है और आप काफ़ी उसमें डिबेट्स भी करते हैं। सर, अभी जो करंट आपने देखा, ट्रंप ने टैरिफ को नोटिफाई कर दिया है, जो एडिशनल 25% टैरिफ है वो नोटिफाई हो चुके हैं। तो हाउ डू यू सी इंडियाज पोजिशन राइट नाउ, एंड डू यू थिंक इंडिया इज हैंडलिंग इट वेल और समथिंग कैन बी डन डिफरेंटली? Well, President Trump, in the quest for American isolationism, if I may call it, is gutting the entire US security architecture, which the United States constructed very assiduously post the Second World War in 1945. While you are correct that India and Brazil are in the highest tariff bracket, for reasons which are completely inexplicable and totally extraneous, but other countries have also been bearing the brunt. Switzerland was in the 39% bracket. So under those circumstances, this is not only reconfiguring the economic architecture of the world, this is reconfiguring the security architecture of the world also. And no longer are countries or even US allies, whether in Europe, whether in North Asia, Southeast Asia, in East Asia, all the way down to Australia, convinced that the United States is a reliable partner. So therefore, the Trump presidency, by the time it ends, would have ended up doing so much of damage to US foreign and strategic policy that it would take decades to be able to reclaim that trust. It's a painful situation. Some parts of the Indian economy will get hurt, but under no circumstances as a country we should bow down to coercion. The government should stand up straight, demonstrate spine. We have weathered far more serious crises in the past. Yes, an attempt should be made to engage with the United States. We have a natural syncretic relationship with them. We have a people-to-people relationship with them.
which predates even a warm government relationship, which only started in 1998 when the Stroop-Talbot Jaswant Singh reset took place. We should try and persevere, but under no circumstances can India or should India concede on its vital economic interests. But do you think they're handling well? Well, see, this is a binary. You know, it's not a yes or no. No, but they are assessment of yours. They are always 50 shades of grey between a black and white. So yes, it's a tough situation, and in this situation, everything needs to be done. A, to widen our strategic choices, to widen our economic framework, to try and build on the two original postulates which were enunciated by Prime Minister Nehru, which is non-alignment, which is called multi-alignment today, and by Prime Minister Indira Gandhi, self-reliance, which is called Atmanirbharta today, because eventually, you know, when the chips are down, you are falling back on those two fundamental maxims which have been the cornerstones of India's foreign and economic policy. सर इसमें एक छोटा सा मैं एक सम अप चीज़ करना चाहूँगा कि हमने देखा कि ट्रम्प बार बार ये कह रहे हैं कि सीज फायर मैंने कराई पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, और आपकी पार्टी का भी ये पोजीशन है कि प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया। आप खुद डेलीगेशंस में का हिस्सा थे जो विदेशों में गए, जिन्होंने समझाई भारत की पोजीशन। व्हाट इज योर टेक ऑन ऑल दीज थिंग्स? देखिए, ऐसा है कि फिर द आंसर इज नुएंस्ड. Going back to Operation Brass Tacks in 1987, when Pakistan first started using the N-word, there has been back channeling in every India-Pakistan crisis. It happened with the Roberts Gates mission in 1990. It happened during Operation Parakram. It happened during 26/11. It happened during Uri. It happened during the Pulwama Balakot dynamic. In fact, President Trump's summit with Kim Jong-un in Hanoi had failed. And on the 1st of March, if I remember correctly, 2019, he did a press conference saying that there would be good news from India and Pakistan soon. So, therefore, in President Trump's lexicon, what earlier used to be back channeling and quiet is now front channeling. So therefore, you are actually confronted with a US administration which believes in throwing to the winds all established canons and practices of diplomacy and statecraft. So this is what the situation but is it a surrender? See, ultimately, back channeling, mediation, and arbitration are three different concepts altogether. And I think this position has been clarified that yes, there was back channeling. Minister Jaishankar has said that he was talking to XYZ. Even Prime Minister was taking calls from Vice President Vance and a lot of other people. But eventually, the call which led to the cessation of hostilities on 10th of May 2025 at 5 p.m. in the evening was made that afternoon by the Director General of Military Operations of Pakistan. Whether back channeling had a role to play in that, it is only the stakeholders who were involved in the process would be in the best position to really enunciate. But the word surrender is time and again used, sir. Well, you see, unfortunately, India's political lexicon or India's political discourse, now going back 5 decades, I remember it very clearly from 1981 onwards, has become extremely toxic. Do you think it was fair in 1987 that a young Prime Minister who had a 415 seat majority in Parliament to say that gali gali mein shor hai, Rajiv Gandhi chor hai, wasn't that absolutely abominable? Was that the kind of language which should have been used? And ultimately, what came out? Nothing came out of Bofors, right? It was a complete mirage and a chimera.
Then you saw in 2010 November, when a whole parliament session was wiped out on 2G, what kind of language was used at that point in time. Again in 2012, when a whole parliament session was wiped out. So therefore, when you sow the wind, you reap the whirlwind. So you're suggesting it's tit for tat. Well, in the sense that is what it is. That is exactly what it is. So therefore, if you want other people to exercise a modicum of restraint, then you need to exercise that restraint yourself. But sir, on national security issue? Well, you see, you have situations whereby people have played very crass politics with national security. I do not want to bring it up, but the Prime Minister, as the Chief Minister of Gujarat, had gone and addressed a press conference in Mumbai, right outside the hotels where when the operation for flushing out terrorists was going on. In fact, let me jog your memory a little more that on various occasions in the past, the opposition has been, and I'm not talking about us in the opposition, but when they were in the opposition, they have been very uncharitable. Yes, there was also an Atal Bihari Vajpayee who in 1971, after the liberation of Bangladesh, had hailed late Prime Minister Mrs. Gandhi's leadership. So, if you require maturity and statespersonship of that order, then that has to come from all sides. No? But sir, all party delegations जो गए थे, इसको आप एक statesmanship का देखते हैं, because आप भी उसका part थे. See, ultimately, बल्कि लक्षित आपकी पार्टी ने उसको oppose किया. Ultimately, multi-party delegations, which represent the collective will of the nation as a whole, should be the norm and not the exception. And in moments of national crisis, we must demonstrate that all of us stand together. And the multi-party delegations were able to convey a very clear message that Pakistan is a perpetrator and a sponsor of state terror, and such sponsors of state terror need to be isolated from the global mainstream. मैं आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा हूं. सर, पाकिस्तान की बात हो रही है. एक अजीब सी चीज़ हुई है. आज पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा है और भारत चीन से अब करीबी कर रहा है. इसको आप किस तरह देखते हैं? और पाकिस्तान और अमेरिका का टैंगो एक बार दोबारा देखने को मिल रहा है. देखिए, पहली बार नहीं हुआ है. अगर आपको 1969 याद हो, 1979, तो जब सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान के ऊपर आक्रमण किया था, उस समय भी ये तिगड़ी बनी थी अमेरिका, पाकिस्तान और चीन, क्योंकि उस समय अमेरिका चीन का इस्तेमाल सोवियत संघ के खिलाफ कर रहा था और पाकिस्तान उसमें वो कड़ी थी जिसने किसिंजर की मदद की थी 1971 जुलाई में बीजिंग जाने के लिए. तो जो सामरिक रणनीति है या जो जियो स्ट्रैटेजी है, उसमें एक चीज़ आपको बुनियादी रूप से पल्ले बांध लेनी चाहिए. देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज, दे आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट. ये राजनीति में भी है. जिस परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, इंटरेस्ट परमानेंट रहते हैं, और किसी भी देश को जब अपनी सामरिक नीति तय करता है, इस चीज़ को अपनी नज़र से अलग नहीं करना चाहिए. और इसीलिए जब गुटनिरपेक्षता की बात हुई थी, इसी चीज़ को संज्ञान में लेते हुए. सर, लेकिन ऐसा क्यों आपको क्रिप्टिक मैसेज करने पड़ते हैं कुछ अपनी बात को कन्वे करने के लिए? भारत का रहने वाला हूँ और ऑटोनॉमी और ये सब आप डायरेक्टली, क्या आपकी पार्टी ने इस बार, क्या ये सच है कि आपको अलाउ नहीं किया ऑपरेशन सिंदूर पे बोलने के लिए? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस संसदीय दल में 100 लोग हैं और उन 100 लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलना चाहते थे या बोलना चाहते होंगे. उनमें से मैं भी एक था. अब ये पार्टी ने चयन किया कि कौन पार्टी का पक्ष ज़्यादा बढ़िया तरीके से संसद में रख सकता है. शायद उनको लगा होगा कि मैं पार्टी का पक्ष उतने अच्छे तरीके से संसद में नहीं रख सकता, पर मुझे उससे कोई ना गिला है ना मलाल है
क्योंकि मैं जिसे अंग्रेज़ी में कहता हूँ कि आप सब दोस्तों की मेहरबानी से पिछले 20 साल से what I say is that I have squatters rights on the Indian public discourse. तो कोई ना कोई बात करने आ जाता है, अपनी बात हम कह ही देते हैं। But you said that please understand my silence. What do you mean by that? अब देखिए और ये हमारे देखिए हमारे जैसे पत्रकारों के इसको डिसाइफर करना बड़ा मुश्किल तो है। भाई ऐसा है कि खोजी पत्रकारिता इसे ही कहते हैं कि तो मतलब ये ढूंढना पड़ेगा। खोजी पत्रकारिता इसी को कहते हैं कि अपना थोड़ा सा जो ज्ञानवर्धन है अपने चक्षु खोलिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो सर एक बड़ा गहरा एलिगेशन किरण रिजिजू ने हमारे से इंटरव्यू में दौरान लगाया है कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस गैंग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं देश की सुरक्षा को डिस्टेबलाइज करने के लिए। देखिए किरण रिजिजू संघ के मंत्री हैं और उनको इस तरह की बेतुकी बात करने से पहले थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। अगर उनके पास ऐसे कोई प्रमाण हैं, अगर वो मानते हैं कि ये जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है और बहुत ही घिनौना और संवेदनशील इल्ज़ाम हैं और उसके उनके पास कोई प्रमाण है तो प्रमाण सार्वजनिक करने चाहिए। इस तरह से तो आप किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते। नेता प्रतिपक्ष को ये कहना, नेता विपक्ष को ये कहना कि वो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं और ख़ासकर ऐसे व्यक्ति को जिसके परिवार में से दो प्रधानमंत्रियों की शहादत हुई हो, ये किरण रिजिजू जी को शोभा नहीं देता है। अब तो 10 साल हो गए, 11 साल हो गए उनको मंत्री बने, तो इसलिए जिस स्टेट्समैनशिप की मैं बात कर रहा था, जो स्टेट्समैनशिप आप विपक्ष से एक्सपेक्ट करते हैं, सबसे पहले सत्ता पक्ष को वो स्टेट्समैनशिप दिखानी चाहिए। सर मैं जब रिसर्च कर रहा था आपसे इंटरव्यू के लिए तो मुझे एक और मुद्दा दिखा जो थोड़ा सा परे है। आप एयर इंडिया से इतने नाराज क्यों रहते हैं प्राइवेटाइजेशन से? नहीं, बिकॉज मैं प्राइवेटाइजेशन का घोर विरोधी हूँ। मेरा ये मानना है कि जो पब्लिक एसेट्स हैं, जो लोगों के पैसे से बनाए गए हैं, उनको कौड़ियों के दाम नहीं बेचना चाहिए। आपकी बात सही है। मैंने 2017 में 16-17 में जब ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस समय भी फाइनेंशियल एक्सप्रेस में और बाकी अखबारों में लेख लिखे थे कि ये 5 लाख करोड़ की कंपनी को आप कौड़ियों के दाम बेच रहे हैं। आज क्या हाल हो गया है एयर इंडिया का। ये जो निजीकरण का आविष्कार था, ये क्या सफल हुआ है? इसके ऊपर बहुत गंभीर चर्चा होनी चाहिए। जो आज एयर इंडिया का हाल हो गया है, तो विचारात्मक तौर पर, बुनियादी तौर पर मैं को प्राइवेट कैपिटल के खिलाफ नहीं हूँ। आप पैसा लगाइए, आप पैसा कमाइए। मेरा ये मानना है कि इट इज़ ग्लोरियस टू बी रिच। जब आप पैसा कमाएंगे तभी आप पैसा बांट पाएंगे, तभी आप सरकार को कर दे पाएंगे और वो कर फिर विकास के कामों पर लग पाएगा। पर जो एसेट्स लोगों के पैसे से बनाए गए हों, अगर वो ठीक भी नहीं चल रहे, तो क्या उनको कौड़ियों के दाम बेचना चाहिए निजीकरण के नाम पर, जो पूरी दुनिया में हुआ था ये न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर के तहत 1991 के बाद? मैं इसका तब से घोर विरोधी रहा हूँ। अनिल जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा मैं सम अप कर रहा हूँ। 2-3 चीज़ें पूछूंगा, उसमें आप अगर शॉर्ट संक्षिप्तली बता पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर कैसा था और ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं हुआ? देखिए, बुनियादी बात ये है कि इसका मैं अंग्रेजी में जवाब देता हूँ। इज़ अ कन्वेंशनल रिस्पॉन्स to asymmetric warfare a response enough to establish deterrence? Is there space for a conventional response under a nuclear overhang? How much is the space? If you are up an escalatory ladder without any off ramps, given the nuclearized environment in South Asia and beyond, how far up can you go on that escalatory ladder? And finally, what you really need to very dispassionately and very coolly
try and analyze and dissect, will a conventional response establish enough deterrence that the next terror attack does not take place? These are very serious questions which cannot be answered in a yes or no. और आप जो कह रहे थे कि आपको बोलने नहीं दिया ऑपरेशन सिंदूर के डिबेट के दौरान, चर्चा के दौरान, अगर मैं बोलता तो मैं यही सवाल उठाने वाला था, क्योंकि भारत की सुरक्षा को जुड़े हुए बहुत ही गंभीर सवाल हैं। हम 1.9% अपनी जीडीपी का सुरक्षा पे खर्च करते हैं। एक समय ऐसा था 2017 में जब हम सिर्फ 1.62% का खर्च कर रहे थे, और ये मेरे आंकड़े नहीं है, मुरली मनोहर जोशी जी जब एस्टिमेट्स कमेटी के चेयरमैन थे उनके आंकड़े हैं। वो इतना ही था जितना 1962 में था। वी हैव अ टू फ्रंट चैलेंज, चाइना एंड पाकिस्तान। तो या तो आपको अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर एक्सपोनेंशियली बढ़ाना पड़ेगा, या आपके जो सामरिक चुनौतियां हैं उनको घटाना पड़ेगा। ये गंभीर मुद्दे हैं जिसके ऊपर संसद को चर्चा करनी चाहिए। Part B and last for my summing up is all well in Congress because time and again you and Shashi Tharoor are seen as little upset with the party, not towing the party line at times. सब ठीक है, सब चंगा है। ऐसा है कि मुझे आज 45 साल हो गए कांग्रेस पार्टी में। मेरा पूरा जीवन ही कांग्रेस पार्टी में निकल गया, तो इसलिए विचारात्मक तौर पर हमारा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए ज़रूरी है। पर क्योंकि आप आखिरी पड़ाव पे हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करें, जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करें, बच्चे हमारी अहद के चालाक हो गए। अब इसको हमें वो करना पड़ेगा समझना पड़ेगा इसका गहराई। इसकी गहराई कुछ नहीं है, इसकी गहराई सिर्फ इतनी है कि समर्पण और पूर्ण समर्पण और विचारात्मक तौर पर रोबस्टनेस, ऐसे लोगों की ज़रूरत है इस महान विशाल संगठन जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, उसको आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू मनीष जी।